Hello guys, how are you all? Okay, so shall we start with our today's session? Okay, so I'm gonna share my screen now. Okay, and you need to tell that is it visible or not. Okay, so please tell that is it visible or not. Now please tell. Okay, so can you see now? Yes, kindly tell that. Can you guys see? Okay, thank you. Thank you, Agya. Yes. So we were on photographic material. We have already discussed about soldering. What is soldering? It is a joining process which is actually used to join different metals together by solder. Okay, right? And we have also studied about electroplating. Electroplating is an organic compound. Okay, no, not this one. Electroplating is like actually applying a metal coating on the another surface of metal. Like suppose as you do the wall plating, okay, you apply that wall putty on the wall, right? So same with the electroplating, but in electroplating you apply a different metal coating on another piece of metal. Okay, this is what electroplating is. Okay. Now we come up to photographic material. So silver is also used to make photographic material. How? So all photographic paper consists of a light sensitive emulsion. Okay, it consists of a light sensitive emulsion. Emulsion is actually uh yeah. So can you guys see me? Please tell. Uh, can you see? Can you guys see the screen? Is my screen visible? Yes, please tell that is my screen visible? Okay. So emulsion is basically a process in which we actually used to count how many droplets of something is there. So emulsion is basically a process in which we count that how many amount of droplets are there in a particular liquid. Okay. Yeah. Okay, we actually used to count that how many droplets of the insoluble or the soluble material is there in the liquid. Okay, so what is it is that also consists of a light sensitive emulsion, means counting of it, consisting of silver halide. Okay, salt. It is a salt. Okay, suspended in a colloidal material, usually gelatin coated on a paper, resin coated paper, or polyester support. So basically, this silver halide, or you can say this Ag plus and chlorine minus. Okay, so this is what it is. Okay. Yes. Okay. Thanks. Yeah. So basically, what is there is that. Wait a second. Yeah. Yeah. So this silver halide is a salt with a chemical formula Ag plus and chlorine minus. Ag is actually silver argentum, right? Okay. Yeah. And gelatin has actually coated on that particular paper, or can say resin coated paper or polyester support. So there are some chemicals which you don't need to know now. Just just learn that photographic papers um consists of light sensitive emulsion, which consists of the salt silver halide named salt, and its chemical formula is this Ag plus chlorine minus. Okay. Now we come up to uranium. Okay,
this is actually something which in the uranium you are going to study about radioactive minerals, which is a very big topic and इसमें बहुत सारी details भी है. Okay, you are going to learn about its details. What is actually radioactive mineral? So first of all, let us just learn what is uranium. Okay, so uranium is basically a radioactive mineral. It is an example of a radioactive mineral, and the concentration of uranium is very low. What does it mean? कि means ये इसका डिपोजिशन काफी लो है, यानी कि काफी कम डिपोजिट होता है ये. ओके, ये सुनो, ये काफी डिपोजिट होता है. दैट इज व्हाई इसका कंसंट्रेशन काफी लो है. ओके, थैंक यू. So इसका कंसंट्रेशन काफी लो है एंड दस its mining is actually very expensive just because इसका कंसंट्रेशन लो है. ये जानना पड़ता है कि whether इस प्लेस पे हमें यूरेनियम मिलेगा whether not. Is my video paused? Is it same with others? Alina, is my video paused? Please tell. Is my video paused? Am I not visible? I should be visible actually. Yeah. Maybe network issue, Adya. I think so there will be network issue. Yes. So, okay. Now it will not, okay? Yeah. So, its concentration is low. What does it mean? कि मैं ये deposit काफी कम होता है and ये ores की form में काफी कम पाया जाता है and thus its extraction is both difficult and costly. Means obviously अगर इसका मतलब एक्चुअली लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे वेदर यूरेनियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली पीपल नीड्स टू नो कि हाँ वेदर इट इज अ प्लेस वेयर यूरेनियम अकर्स और नॉट. ओके, सो बिकॉज ये हर जगह का नहीं होता है, जहाँ ये अकर होता है वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बहुत लो है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है. तो मीन्स इसका ये बहुत कॉस्टली भी है एंड इट्स एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट and it is widely used to make atom bombs, missiles and even used to generate electricity. Okay, ये bombs बनाने में help करता है, missiles and even used to generate electricity. हाँ, you know हम लोगों ने पढ़ा था कि how coal is actually used to generate electricity. कि coal जब react होता है combustion की help से then it leads to burning. Okay, and then जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड स्टीम टरबाइन रोटेट होती है, देन वो पाउडर प्रोड्यूस करता है जो कि जनरेटर को रन करने में हेल्प करता है एंड देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सेम गोज विद यूरेनियम, बट इसमें थोड़ा लाइक यू नो इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने का. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट radioactive minerals. That what is radioactive minerals? Okay, we are going to study about what is radioactive minerals. So now you need to actually focus a lot. Okay, yeah. Now we come upon radioactive minerals. So radioactive minerals are simply the minerals which consist of radioactive elements. Okay, but हम लोग radioactive elements के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, so if you are actually like for your 6th grade or for your 5th grade, इतना enough है कि हाँ it consists of radioactive elements. But for your future, कि मतलब होता क्या है? If you want to know, you are actually very concerned कि हाँ होता क्या है? So you should actually listen to it very carefully. कि radioactive elements consist of atoms whose nuclei are unstable and give off atomic radiation as a process of attaining stability. अभी इसका मतलब क्या हुआ? कि जो radioactive elements है, they actually contain the elements जिनका न्यूक्लियर एक्चुअली अ प्लूरल न्यूक्लियस, लाइक बहुत सारे न्यूक्लियस को एक साथ न्यूक्ली कहते हैं. ओके, या जिनके न्यूक्ली अनस्टेबल होते हैं मींस
रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं जिन एटम्स के न्यूक्ली अनस्टेबल होते हैं एंड these unstable nuclei give off atomic radiation. What atomic radiation we are going to? Are you not able to hear me? Alina, are you able to hear me? Yes, please tell Alina, are you able to hear me? Yes, please reply. Okay, Alina is able to hear. Okay. Yeah, so Adya, you can watch the replay if you want, or you can wait for a network to actually, gain. Yeah. So radioactive elements are the elements जिनमें एटम्स जिनके एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होते हैं. आई विल टेल व्हाट इज अनस्टेबल. ओके. एंड गिव अप एटॉमिक रेडिएशन. वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं. सबसे पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ व्हाट इज अनस्टेबल एंड स्टेबल न्यूक्लियस. ये होती है स्टेबल न्यूक्लियस जिनके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सारे एक साथ ऐसे गैदर्ड अप होते हैं. और ये होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दे ऑल आर एक्चुअली gathered. Wait, let me stop sharing my screen once so that I can actually remove the yeah, now it is fine. I'm going to share it again. Yeah. So yeah, it is. Yeah. So basically stable nuclei जिनके protons and neutrons एक साथ cleanly gathered up होते हैं and they are actually collected like this. And unstable is जिनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सारे ऐसे कहीं भी बिखरे होते हैं. ओके. They are actually in a random positions. Okay. Yeah. This is stable and unstable nuclei. अब हम आते हैं एटॉमिक रेडिएशन भी पढ़ेंगे अभी. सो रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपको पहले याद रखना है एटम जिनकी न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है. एंड ये जो न्यूक्लियस होती है ये एटॉमिक रेडिएशन देते हैं. व्हाट आर दे? आई विल टेल यू. ठीक है. With the process of attaining stability. ठीक है. They are harmful substances. We should not keep them in our hand for so long as they produce harmful radiations. Yes, Alina, they are harmful. They produce these atomic radiation which are actually harmful. But you know that they are actually very useful also. They are useful also because they are used to generate electricity and they help us in creating they help us in making of those bombs and those which are actually there. Okay. So which are actually there for our help. Yeah. So now let us just come upon that कि होते क्या है रेडियोएक्टिव मिनरल. हम लोगों को इतना पता लग गया कि एटम जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं. ओके. एंड वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं अबाउट अलीना दे आर हार्मफुल रेडिएशन बिकॉज यू कैन इमेजिन कि अगर वो बॉम्ब्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं. आप बॉम्ब्स कितने डेंजरस होते हैं. बट दे आर एसेंशियल ऑल्सो. बॉम्ब्स वॉर्स के लिए हमारी सेफ्टी के लिए एज अ हथियार एज अ प्रोटेक्टर. ओके. एज अ प्रोटेक्टर हमारे पास बॉम्ब्स होने चाहिए. हमारे पास ऐसे नहीं कि घर में India is also having those missiles, those bombs. Okay. Yeah. So atomic radiation जो न्यूक्लियस होता है वो atomic radiation गिव आउट करता है. Okay. And the emission of radioactive transfer. And जो ये atomic radiation होती है, ठीक है, ये ट्रांसफर करती है रेडियोएक्टिव एटम्स को, यानी कि ये जो एटम जिनमें अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, into the chemical element which may be stable or may be radioactive so that it undergoes further later. अभी आई थिंक आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होगी. बस आपको क्या फोकस करना है जो मैं कह रही हूँ. ओके. सो रेडियोएक्टिव मिनरल. दिस मिनरल कंसिस्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो कि कंसिस्ट करते हैं रेडियोएक्टिव एटम्स को. एंड जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है ना वो अनस्टेबल होते हैं. यानी कि वो उनमें जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सारे रैंडमली प्लेस्ड होते हैं एंड वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर एटॉमिक रेडिएशंस. ओके. या. एंड द
emission of radiation means ये जो radiation ये लोग देते हैं न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस जो रेडिएशन देते हैं ये रेडियोएक्टिव एटम्स को केमिकल एलिमेंट्स में ट्रांसफर करती है, दस वो लोग इनके साथ बॉम्ब्स एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. सो रेडियोएक्टिव आप कह सकते हो रेडियोएक्टिव इज अ प्रॉपर्टी जिस possessed by some elements such as uranium or isotopes such as carbon-14 of spontaneously emitting energetic particles such as electrons or by the distinction of their atomic number also the race emit. अभी मैं अगर आपको ये सब एक साथ बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ कि रेडियोएक्टिव जो एटम्स मिनरल्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, जो कि कंटेन करते हैं रेडियोएक्टिव मिनरल्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को, जो कि कंटेन करते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कंटेन करते हैं रेडियोएक्टिव एटम्स को, और जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं वो न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, यानी कि रैंडमली प्लेस्ड होता है. एंड ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ये गिव आउट करते हैं एटॉमिक रेडिएशन. ठीक है, अभी आप बस यहाँ एटॉमिक रेडिएशन तक याद रखिए. सो बेसिकली रेडियोएक्टिव आप कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है, और ये जो आप पता है ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस. ओके, अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडिएशन सबके बारे में, व्हाट आर दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे एमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल, फिर मैं आपको एक साथ बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि व्हाट ऑल इज दिस रेडियोएक्टिव मिनरल. अभी पहले हम लोग जान लेते हैं कि एटॉमिक रेडिएशन होती क्या है. व्हाट इज दिस एटॉमिक रेडिएशन, व्हाट डू वी मेंट बाय दिस एटॉमिक रेडिएशन, इसका मतलब क्या होता है. इट्स ओके गरिमा, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. सो बेसिकली अभी हम कर रहे हैं रेडियोएक्टिव मिनरल. तो अभी हमने करा कि रेडियोएक्टिव मिनरल कंसिस्ट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो कि कंटेन करते हैं रेडियोएक्टिव एटम्स को, एंड जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं वो उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल मैंने आपको दिखाया था, दिस इज अनस्टेबल, यानी कि वो रैंडमली कहीं पे भी होते हैं. ओके, एंड वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं. तो मैं अगर आपको मैं अभी आपको एक फ्लो दिखाऊंगी. सो आप उसमें कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव मिनरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एटम्स को कंटेन करते हैं, एंड ये जो एटम्स होते हैं ये न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, एंड वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं. एंड ये जो एटॉमिक रेडिएशन है ये ट्रांसफर करती है रेडियोएक्टिव एटम्स को केमिकल एलिमेंट में, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बॉम्ब्स एंड एक्सेट्रा ये सब बनते हैं. ओके, अगर आपको नहीं समझ आया आप रिकॉर्डिंग देख लेना. अभी वैसे हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारा इसके अंदर पढ़ना है हमें. या सो पहले हम एटॉमिक रेडिएशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन. सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कैन से एटॉमिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय एन एटम. जो एटम्स से निकलती है एनर्जी वो एटॉमिक रेडिएशन, जो न्यूक्लियस से निकलती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन. चलो आप देखते हैं क्या है ये. So electromagnetic radiation emitted by an atom as a result of its orbital electron passing from a higher to a lower energy level. कुछ समझ आया? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एनर्जी हायर से लोअर, यानी कि एक तरीके से ऐसे 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 हिल्स की तरह ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लोअर से हायर लेवल में ऐसे होते रहते हैं, कभी हायर कभी लोअर. देखो कभी यहाँ पे होगा एंड कभी वो यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ हो जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट इट इज. यानी कि कभी यहाँ होगा फिर कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ होगा फिर ये कभी यहाँ हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम्स देते हैं. एटम्स एक्चुअली एमिट रेडियो और कैन से एटॉमिक रेडिएशन एटम्स देते हैं as a result of its orbital electron passing from a higher to a lower. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर लेवल में एक्चुअली ऐसे करते रहते हैं, पास करते रहते हैं, चलते रहते हैं हायर से लोअर लेवल पे. ओके, इनका ये ऊपर नीचे आगे, इनका ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलना. ओके, दिस कॉजेस एटम टू रिलीज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एटॉमिक रेडिएशन क्या होती है. जो एटम, पहली बात एटम एमिट करता है, एटॉमिक रेडिएशन एटम एमिट करता है, एंड न्यूक्लियर रेडिएशन न्यूक्लियस एमिट करता है. तो एटॉमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एटॉमिक रेडिएशन में क्या होता है कि इट
it is actually caused when orbital electrons pass from a higher to a lower energy level. ओके, जब वो ऊपर से नीचे हायर से लोअर लेवल पे ट्रैवल करते हैं, ओके, जब पास करते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ओके, सो दिस कॉजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एटॉमिक रेडिएशन टू बी एमिटेड. अगर आपको पहले बस इतना बता, आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला या कैन से एटॉमिक रेडिएशन वाला समझ आया या नहीं आया? जस्ट टेल मी इतना कि आपको ये समझ आया. हैव यू गॉट इट? होता क्या है ये एटॉमिक रेडिएशन? यस और नो? अगर यस तो स्माइली, नहीं आया तो फिर नो, कैंसिल नो. ओके, मैं आपको फिर से बता दूँ. यस प्लीज टेल. यस, काइंडली टेल. हैव यू गॉट इट और नॉट? आपको समझ आया भी या नहीं? आपको नहीं आया? you can actually like tell me that yes you have not understood it, so please repeat. Garima, have you got it? अभी actually Garima Leena there. Okay, you need to see the recording, but ये वाला पार्ट मैं अभी समझा रही हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग में एक्चुअली पहले समझा भी नहीं था. सो बेसिकली मैं फिर से बता रही हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉज होती है जब एटम, ओके, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे करते हैं ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. ओके, सो रेडियो एक्टिव ये जो एटम्स होते हैं ये एटॉमिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक एनर्जी है एक्चुअली. ओके, अभी आपको ये इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि हाँ, इट इज कॉज्ड व्हेन एटम्स एक्चुअली गिव आउट द एनर्जी. ओके, एंड रेडिएशन emitted by the nucleus of an atom is called nuclear energy. Okay, Garima, anyways, yeah, so basically क्या कि हाँ, तो अभी आपको पता चल गया कि एटॉमिक रेडिएशन एक एनर्जी गिवन आउट है. एनर्जी, it is actually an energy which is given out by atoms. Okay, आप ऐसे याद कर लीजिए. तो अभी हम इसको कर अब इसको हम बोलते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स. Okay, thank you so much, Garima. Yeah, so radioactive elements basically consist of atom. आपको बहुत easy, आपको अपना दिमाग पूरा क्लीन करना है, मेरी बातों को सुनना. What I'm saying, just actually pay attention towards what I'm speaking actually. Okay, yeah. So minerals, आपको पता है minerals किससे बनते हैं ना? पता है ना, एलिमेंट से बनते हैं minerals, right or not? So ये जो minerals है ये एलिमेंट से ही बनते हैं, लेकिन ये रेडियोएक्टिव मिनरल्स यानी कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बनता है. एंड अभी आपको ये भी पता है कि एलिमेंट्स किससे बनता है? एलिमेंट्स आर फॉर्म एटम ऑफ सेम काइंड, यार, राइट? सो मिनरल्स एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स के अंदर होता है एटम्स, राइट? तो यानी कि रेडियोएक्टिव मिनरल्स में एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे. ओके गरिमा, ओके अलीना, ओके. एंड जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है उसमें आपको रेडियोएक्टिव एटम्स मिलेंगे. एज सिंपल एज इट. इतना 3 चीजें याद करनी है, मिनरल्स में एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में एटम्स. ओके, अभी आया? हाँ, अभी हम एटम्स के बारे में जानते हैं. तो एटम्स में क्या एटम्स की कुछ स्पेशलिटी तो होगी, क्योंकि तभी वो रेडियोएक्टिव है, राइट? तो उनकी स्पेशलिटी ये है कि जो उनका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल मतलब उनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़े हुए नहीं है, वो अलग अलग, कुछ कहीं पे है, कुछ कहीं पे है, कुछ कहीं पे है. ओके, दिस इज अनस्टेबल. तो अनस्टेबल न्यूक्लियस की आपको पहचान भी हो गई कि व्हाट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, यानी कि उसकी सारी ऐसे वो रैंडम पोजीशंस पे होते हैं. ओके, या सो रेडियो, अभी आपको ये भी पता चल गया कि मतलब ये जो न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या देते हैं? वो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं, यानी कि जो उनके एटम्स होता है वो ये एनर्जी देते हैं. ओके, एंड हर कोई एटम की वाली एनर्जी नहीं देगा. ओके, हर कोई मतलब मेनली एटम सिंपल एनर्जी देंगे, बट ये जो रेडियोएक्टिव एटम्स है जिनका, अब आप इनकी पहचान कैसे करोगे?
जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो होते हैं रेडियो एक्टिव एटम, एंड वो देते हैं एटॉमिक रेडिएशन, जो कि आपने पढ़ लिया है व्हाट इज एटॉमिक रेडिएशन। ओके, अभी हम करते हैं आगे का, व्हाट इज दिस, द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय सम एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम और isotopes such as carbon-14 of spontaneously emitting energetic particles such as electrons or alpha particles. Okay, यानी कि बेसिकली इस पूरे रेडियो एक्टिव मिनरल के प्रोसेस में ये एक प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिव इज अ प्रॉपर्टी, जिसमें ये जो आपको पता है ये न्यूक्लियस, व्हाट डज न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स. Yes, it's my pleasure, Alina, and even I feel very thankful कि I'm able to teach this to you all. Okay, yeah, what you all only you do. Okay, so yeah, so basically what is there, that radioactive एक property है जिसमें you know कि atoms के nucleus unstable होते हैं, and ये जो nucleus होते हैं इनके अंदर जो protons, electrons होते हैं ना, protons and neutrons, sorry electron भी होता है, and protons and neutrons, yeah. So ये protons and electrons and actually alpha particles भी होते हैं. अभी मैं आपको सब बताऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा. ओके, चलो अभी आपका हमारा वन टॉपिक डन, एटॉमिक रेडिएशन डन, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल न्यूक्लियर डन, रेडियोएक्टिव, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको देखकर आपको पता चल सकता है. रेडियोएक्टिव मिनरल कंसिस्ट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. ओके, एंड radioactive elements are formed basically by the process of beta radiation. यानी कि जो radioactive elements होते हैं ना, इसमें radioactive atoms होते हैं. radioactive atoms कब फॉर्म होते हैं, जब beta radiation का प्रोसेस होता है, तब radioactive elements फॉर्म होता है. अभी हम पढ़ेंगे beta radiation के बारे में. हम जैसे एटॉमिक रेडिएशन पढ़ा ना, व्हाट इज एटॉमिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन तो न्यूक्लियस गिव्स आउट एटॉमिक रेडिएशन, आप इसको AR बोल लीजिए अभी, या ओके. यानी कि रेडियोएक्टिव मिनरल कंसिस्ट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं, ठीक है, एंड वो जो एटम्स होते हैं वो बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से बनते हैं. अभी हम पढ़ेंगे बीटा रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, एंड वो जो एटम जो बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से बनते हैं वो कंटेन करता है न्यूक्ली, जो कि आपको पता ही है क्या है, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्ली, एंड अल्फा. अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल्स होता है. अभी हम पढ़ेंगे अल्फा के बारे में भी. अल्फा न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स. जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो अल्फा पार्टिकल को, जैसे वो एटॉमिक रेडिएशन को, सॉरी वो तो जैसे वो एटॉमिक रेडिएशन को एमिट करते हैं ना, वैसे ही वो अल्फा पार्टिकल्स को भी एमिट करते हैं. ओके, इतना समझ आया आपको? बस इतना याद रखना है कि रेडियोएक्टिव मिनरल्स आर फॉर्म्ड विद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, एंड ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड आर एक्चुअली मेड अप ऑफ रेडियोएक्टिव atoms. Okay, and these atoms are formed with the process of beta radiation. Sorry for the bad handwriting, but ये जो atoms होते हैं ये formed होते हैं with the help of beta radiation, and beta radiation, okay, and this nuclei and जो atoms होते हैं वो क्या contain करते हैं, nuclei and alpha. Okay, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है अल्फा. पहले हमें न्यूक्लियस तो पता, अभी हम पहले पढ़ेंगे अल्फा क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे बीटा रेडिएशन के बारे में. ओके, आ गए हम लोग अल्फा पे. ओके, अल्फा. सो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. यू नो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन. एंड जिनका कोई भी चार्ज नहीं होता, जो नो चार्ज होता है, वो होते हैं न्यूट्रॉन. राइट और नॉट? प्रोटॉन्स आर प्लस, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनस, और न्यूट्रॉन जीरो, बड़का बड़का अंडा. ओके, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होगा. सो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें प्रोटॉन है. ओके,
यानी कि इसमें प्रोटॉन्स है। ओके, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसके अंदर प्रोटॉन्स है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम 4 एटम। आपको पता है हीलियम, जो हीलियम गैस होती है, हीलियम 4। ओके, या सो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये सिमिलर होते हैं हीलियम एटम के, जो कि 4 एटम, एक्चुअली हीलियम इन अमाउंट 4। ओके, या सो बेसिकली अगर हम इसे बोलेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, identical, they are equal, they are similar to the nucleus of the helium 4 atom, spontaneously emitted by some radioactive substances consisting of 2 protons and 2 neutrons। अब यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज है एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज है, तो यानी कि अब आप कह दो कि +0 इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू प्लस, है ना। जब हमारे पास होता है कि प्लस और 0 करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 + 0, तो हमारा आंसर 1 + ही होगा ना, एक तरीके से प्लस का 1, तो वैसे ही हम इसको प्लस मानेंगे। तो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि वो उसमें हम लोग उसमें प्रोटॉन्स है इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। एंड आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम 4 एटम। ये किससे सिमिलर है, हीलियम से, जो जिसमें 4 एटम्स है। ओके, हीलियम, हीलियम के एटम से जिसमें 4 हीलियम जिसमें 4 एटम्स, ये उससे सिमिलर होता है। एंड इट लाइक यू कैन गैदर अप ऑल एंड कैन से कि ये जो अल्फा होता है ये एमिट होता है, ये एक्चुअली कंसिस्ट करता है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ओके, which are actually bound together, thus having a mass of 4 units and a positive charge of 2। यानी कि 4 यूनिट्स हो गए ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, राइट, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। ओके, दिस मीन्स कि 4 यूनिट्स, इसमें 4 यूनिट्स है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला होता है तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल कहते हैं। तो आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है जो कि एक्चुअली अनस्टेबल, बट इसमें स्टेबल दिखाया, डजंट मैटर, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ओके, एंड इट कैन इवन बी यू नो स्टेबल वन, ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स को, ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। एंड these alpha particles are and these alpha particles contain what, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। किस किस को समझ आया कि व्हाट आर अल्फा? अल्फा होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड वो कंटेन करते हैं 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। Who all have got it? Send smileys please. Yes please, if you have got it then please tell। यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस एमिट करता है, इट कैन बी स्टेबल न्यूक्लियस और इवन अनस्टेबल। ओके, वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो इट कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एंड वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो मैं अभी आपसे क्या एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस? आर यू रेडी? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, आर यू रेडी फॉर दैट क्वेश्चन? ओके, so so basically so the question is कि अल्फा पार्टिकल्स में कितनी यूनिट होती है, यानी कि कितनी चीजें होती है, कितनी चीजें होती है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि वो पॉजिटिव है न्यू या फिर वो नेगेटिव है या फिर वो कुछ है या फिर उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि उसमें कितनी यूनिट्स होती है, कितनी चीजें होती है, कितनी चीजें होती है। ओके, गरिमा हैज आंसर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस,
Yeah, Garima, 2 neutrons and 2 protons. Oh, pretty cool. Chalo, that's a very good thing for me. I actually felt very glad कि आप सबको आ गया. Okay, it consists of 2 protons and 2 neutrons and ये positively charged है. Just because. अच्छा, आप खुद बताओ, अगर हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसमें एक जगह लिखा है प्लस और एक जगह कोई सिंबल ही नहीं है. सपोज एक जगह प्लस है और एक जगह इनविजिबल सिंबल है. कोई इनविजिबल सिंबल है जो कि हमें दिख ही नहीं रहा. तो आप क्या लोगे? आप प्लस लोगे या फिर वो इनविजिबल सिंबल जो कि हमें दिख नहीं रहा है, जिसमें कुछ है ही नहीं सिंबल, आप वो लोगे? बताओ आप क्या लोगे? प्लीज टेल. आप प्लस लोगे जो कि आपको विजिबल है, या आप लोगे वो इनविजिबल सिंबल जो कि आपको दिख ही नहीं रहा, जिसमें कुछ है ही नहीं? या दैट इज कॉमन. आप प्लस लोगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर वो हमें दिख ही नहीं रहा, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आप पॉजिटिव चार्ज वाला लोगे ना. तो इसमें 2 प्रोटॉन्स है एंड 2 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि न्यूट्रॉन में तो आपको पता है नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, तो हम उसको कोई भी चार्ज नहीं हुआ. लेकिन जो 2 प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए वो हमारा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया. ओके, एंड दिस टॉपिक इज done. ओके, या सो अभी हमारा अल्फा पार्टिकल भी हो चुका है, तो अल्फा को रेस कर देते हैं. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. हाँ, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा रेडिएशन. ओके, आ गए हम बेटा रेडिएशन पे. व्हाट इज बेटा रेडिएशन? बेटा रेडिएशन एक हाई एनर्जी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और positron. It is not positron, it is neutron. Okay, it is not positron, it is neutron. So beta radiation एक ऐसा प्रोसेस है, एक हाई एनर्जी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और सो इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज एक्चुअली जो ऑर्बिट पे घूमते हैं. ओके, या they are actually emitted of electron or positron. Let me just end the slideshow and correct it. Yeah, so it is actually not electron or positron, it is actually what it is actually, it is actually proton or neutron. So abhi it is fine. Let me just F5 and let me just get to that particular slide. That was actually a slide number. That was the beta radiation. So we were on beta radiation. So now let's just see. So beta radiation एक high energy process है जिसमें yes Sunil Kumar, it is plus, so good. So इसमें बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एमिट होता है. ओके, जो मतलब जो न्यूक्लियस, आपको पता है ना न्यूक्लियस किस चीज से बनता है? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, राइट? हमने पढ़ा था ना, हमने जब अनस्टेबल न्यूक्लियस पढ़ा था, तो आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है ना. तो यानी कि अभी हमें इतना पता है कि अभी हमने क्या करा कि जो radioactive minerals are, they are formed with radioactive elements and radioactive elements are formed with radioactive atoms, and जो radioactive elements है वो radioactive atoms है वो कब फॉर्म होते हैं? जब हमें न्यूक्लियस मिलता है जो कि अनस्टेबल हो. एंड वो न्यूक्लियस कैसे मिलेगा? with the help of beta radiation से. ओके, and that radioactive atom also contains alpha particles, जो कि हमने पढ़ा what are alpha particles है ना, and न्यूक्लियस भी. ओके, एंड ये न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूक्लियस बेटा रेडिएशन के प्रोसेस से बनता है. बेटा रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एमिटेड होते हैं. एक्चुअली वो पहले से ही एमिट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेटा डिके. यानी कि
ये जो बेटा रेडिएशन होता है ये एक्चुअली बेटा डिके की हेल्प से होता है, यानी कि ये जो बेटा रेडिएशन है दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ बेटा डिके, राइट? सो इट इज ऑल्सो फॉर्म, बेटा रेडिएशन कब होता है? बेटा डिके की हेल्प से। एंड बेटा रेडिएशन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एमिट होते हैं। ओके, अब हम बेटा डिके पढ़ते हैं क्योंकि बेटा डिके मेन है। बेटा डिके के बाद हम लोग फिर से हम लोग करेंगे इन सबको रिकवर। ओके, सो अब आते हैं बेटा डिके पर। बेटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है, इज अ रेडियोएक्टिव डिके इन व्हिच अ बेटा पार्टिकल, यू नो बेटा पार्टिकल आपको याद रखना है, बेटा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आप इनको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से और वेट अ सेकेंड, या सो बेसिकली आप इनको अभी समझने के लिए आप इनको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कर दीजिए। ओके, इट इज emitted from an atomic nucleus transferring the origin nuclei to an isobar some mass number. In beta decay, the broken atomic nucleus releases energy which is there to generate and also helps in making sparks. अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अभी मैंने बस पढ़ा था, अभी आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस बेटा डिके। या so beta decay is basically a process जिसमें आप ऐसे करिए, जिसमें बेटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में से बेटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर। अभी आप ऐसे कर रहे हो कि देखो, अभी आपको मेरी बात सुननी है, व्हाट इज देयर इज दैट। ओके, हाँ, तो अभी यू नीड टू एक्चुअली लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली कि तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो बेटा डिके एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रेडियोएक्टिव डिके है जिसमें बेटा पार्टिकल्स आर रिलीज। बेटा पार्टिकल्स कौन से हमने पढ़ा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्चुअली रिलीज इन दिस प्रोसेस एंड इट इज रिलीज फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में से, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज होते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिन न्यूक्लाई टू एन इसोबार सेम मास नंबर। यानी कि अभी आप बस इतना, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ओके, सो बेसिकली आप बस ये वाला पॉइंट देखिए, लास्ट सेकंड पॉइंट, कि बेटा डीके में जो ब्रोकन एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, यू नो अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम ब्रोकन एटॉमिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। हाँ, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस और कैन से ब्रोकन न्यूक्लियस होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है जो कि जनरेटर्स को जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है एंड एटम बॉम्ब्स को बनाने में भी हेल्प करता है। तो अब बेटा डिके में आपको बस इतना पढ़ना है कि बेटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है जो कि बेसिकली यू कैन से कि बेटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस, यस अलीना, you are actually free to ask the query. What is nuclide? So Alina, nuclide is actually a type of atom. Okay, nuclide is a type of atom only. Yeah, so nuclide is basically a type of atom or can say nucleus जो कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर पे डिसाइड होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियाइड एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग को हम लोग बेसिकली, जिसमें स्पेशल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि ओके, गॉट इट अलीना? यानी कि न्यूक्लाइड इज बेसिकली एक काइंड ऑफ एटम और कैन से काइंड ऑफ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है। ओके,
अभी मैं आपको कलेक्टिवली बता देती हूँ क्या होता है ये रेडियोएक्टिव मिनरल। हम इस फ्लो चार्ट से करता है, तो हमें पता है रेडियोएक्टिव मिनरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बनता है। एंड अलीना, हैव यू गॉट व्हाट आई हैव सेड कि क्या होता है न्यूक्लाइड? प्लीज टेल अगर आपको पता, आपको यू हैव एक्चुअली गॉट व्हाट इज न्यूक्लाइड। न्यूक्लियड इज बेसिकली न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक एक्चुअली स्पेसिफिक अमाउंट में हमें मिलते हैं। Have you got it, Alina? Please tell. Has your query solved or not? Or do I have to repeat? Yes, got it. Okay, thank you so much, Alina. So रेडियोएक्टिव मिनरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बनते हैं जो कि मेड अप होते हैं रेडियोएक्टिव एटम्स, एंड वो एटम्स फॉर्म्ड होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ बीटा रेडिएशन। यानी कि बीटा रेडिएशन में आपने पढ़ा था, मोस्ट वेलकम, बीटा रेडिएशन में आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एमिट होते हैं, राइट? तो वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बीटा डिके में होते हैं बेसिकली। बीटा डिके में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एमिट होते हैं जो कि न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। एंड वो न्यूक्लियस, जो ब्रोकन पार्ट, जो न्यूक्लियस होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, that actually forms the that and also you know the alpha particles, है ना? एक तो क्या होता है, जो एटम होता है ना, ये वाला एटम है ना, ये जो एटम होता है ये न्यूक्लियस से बनता है, अल्फा से बनता है, अल्फा पार्टिकल से। तो न्यूक्ली तो आपको पता चल गया क्या है न्यूक्ली, कैसे बनी न्यूक्ली बनी बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से, ओके, है ना? न्यूक्ली बनी बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से, क्योंकि बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से ही हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से हमारा okay, Anvesha, I suppose to think this is Anvesha. Okay, yeah, so basically beta radiation की हेल्प से बीटा रेडिएशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बीटा रेडिएशन हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं जिनसे हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। एंड वो न्यूक्लियस together with the alpha particles form the atom, radioactive atom. Anisha, you have joined late, so you should watch out the replay because आज हमने बहुत important deep में details जानी about radioactive minerals के बारे में, okay? Yeah. So Alina and who all have joined, उनको ये वाला पार्ट समझ आया कि क्या मैंने अभी बताया? ये रेडियोएक्टिव मिनरल फाइनली होते क्या है? कलेक्टिवली जो मिनरल जिनमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड जो एलिमेंट्स जिनमें रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं, एंड वो एटम जिनमें न्यूक्लियस एंड अल्फा होता है जो कि बीटा रेडिएशन के प्रोसेस से हमें मिलता है। ओके, गॉट इट? यस और नो? हैव यू गॉट इट और नॉट? प्लीज टेल. Send the smiley and said yes if you have got it actually. Yeah, please tell guys. Okay. तो यानी कि हमारे सबसे बड़ा आज का सबसे बड़ा टॉपिक हमने आज सॉल्व कर लिया, दिस रेडियोएक्टिव मिनरल, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी प्राउड कि हाँ I have actually taught you all about this. Okay, so ये एक्चुअली नाइन्थ एंड एट्थ का टॉपिक है जो कि हमने अभी करा। इट इज बीइंग सो, इट्स एक्चुअली बीन अ थिंग लाइक हमें प्राउड होना चाहिए अपने पर। ओके अनवेशा, यू हैव जॉइन लेट, दैट इज व्हाई थोड़ा अभी आ गया आपको, दैट इज गुड। आप जब पूरा रिप्ले देखोगे तो आपको पूरा आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। या सो बेसिकली आपको बीटा डिके के बारे में भी पता चल गया। अभी लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम अपना फ्लो चार्ट में जरा ठीक कर ले, हाँ कि हमने सारा कर लिया। ओके, लेट अस जस्ट सो लेट अस जस्ट इरेज ऑल द एंड। या सो चलो अभी हम नाउ वी आर ऑन नॉन मेटालिक मिनरल। अब हम आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में। ये जो अभी हम सारे कर रहे थे, सारे
मेटालिक मिनरल्स है, सारे के सारे कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, gold, silver, uranium, these all are metallic minerals. And अब आते हैं हम नॉन मेटालिक पे. लाइमस्टोन, पहला है लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको, सेडिमेंट से डिपॉजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक्स होती है. ओके, मैंने आपको पिक्चर सब दिखाई थी सेडिमेंट्री रॉक्स की. डू यू रिमेम्बर, यस और नो? अगर आपने पहले की क्लासेस अटेंड करी है और यू हैव वॉच्ड द रिप्ले, देन आपको पता होगा कि व्हाट इज इट, what are sedimentary rocks, what are metamorphic, what are igneous rocks, आपको पता है or not? Yes or no? Because I remembered कि मैंने सारा पढ़ाया था. I have actually shown you all these diagrams. Yes, yes, please tell. Yes, please tell. Yeah, do you remember? Yeah, very good, Alina, very good. Yeah, so it is composed of shell. Limestone है ये shells and skeleton से बनती है dead animals के. You know, like जो हमारा जो actually जो decomposers होता है, वो सारे dead animals की जो skin होती है वो सब तो खा लेता है, वो सब तो अपने वो सब उनके न्यूट्रिशन उनकी dead skin से, उनकी muscles से वो सब तो ले लेता है, you know, right? But the skeleton, they left the skeleton, and that the skeleton only, वो जो skeleton and shell से जो rock बनती है उसको हम लोग limestone कहते हैं. Not actually rock, actually the mineral. Okay, and it is mainly used in cement, iron and steel, chemical, paper, fertilizer. Okay, so अभी हम जल्दी जैसे कर लेते हैं because you know हमारा वाला topic भी बचा types of fuels, otherwise हमें next session में लेना पड़ेगा. Yeah, so mica is a bad conductor of electricity. It is used in electrical and electronic industries for conducting and insulation. Insulation is a material designed to prevent the heat or sound from being transmitted to one area and other. यानी कि बेसिकली आवाज को रोकने के लिए कि वो दूसरी जगह तक ना जाए, this mica is used. Okay. Yeah, this mica is used to prevent actually the voice or the heat to go outside from that particular transmitted area. Okay, yeah. Now let's just discuss the difference क्या होता है electronic and electrical के बीच में, because many of you might have been getting the confusion about it. So electronic versus electrical. So electrical means related to electricity. ये होता है simply electrical, and electronic means device having or operating with components such as microchip, transistor, control, and that direct electrical current. So basically electrical is related to electricity, and electronic is of a device which is actually run by electricity, and it is operate with direct electrical currents, like electronic devices. Yeah, Alina, transmitted means transferring. Yeah. So now, yes, Alina, you are correct. Okay. Electrical and electric के बीच में difference समझ आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप इस इमेज को देखो, ये इमेज ही बहुत है आपके लिए. Okay, this image is very enough for you. समझ आया या नहीं? Electronic versus electrical. Please tell. अगर आया तो yes, नहीं आया तो no. See, electrical is basically related to electricity, यानी कि तारों electricity से relate करना. Okay, Alina, thank you. I don't know others have got it or not. Electronic means of a device जो कि electricity से चलता हो, means electrical से चलता हो, electricity से चलता हो, and it actually deals with this transistor, microchips. Okay, suppose computer. Okay, yeah. Now we come up to coal. जल्दी से कर लेते हैं because अभी बहुत सारी चीजें हैं. फ्यूल वाला और है, फिर हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, and I don't want कि एक और क्लास एक्सट्रैक्ट हो, एक एक्सटेंड हो. Actually, coal is a mineral fuel. It is a main resource of energy in the world
There are 4 varieties of coal: anthracite, bituminous, lignite and peat. हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे because it is sufficient for us कि हाँ, there are 4 varieties of coal: anthracite, bituminous, lignite and peat. Okay, it is a main source of energy in the world. Coal is widely used to generate thermal electricity, यानी कि हीट के लिए वो यूज होता है. हीटर जो कि वो जो देसी हीटर्स होते हैं जिसमें आग जलाते हैं कोल डाल के, जिसमें हम आग जलाते हैं. आई डो नॉट नो द हिंदी वर्ड ऑफ इट कि उसे कहते क्या है. दैट कोल हीटर्स. आई थिंक आपने देखे तो होंगे. यस और नो? even actually barbecue is actually run by coal. Okay, coal is actually used to generate thermal electricity, यानी कि heat को it actually helps in generating heat and smelt iron ore. मैंने आपको बताया था ना मैंने बताया था ना आपको कि आयरन ओर कैसे जैसे एक्सट्रैक्ट होता है वो लोग हीट. यस. So let me just go to that particular slide जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि wait, please wait. Okay, मैं अभी जा रही हूँ उस particular site पे. Let me actually go to that site. Okay, yeah. So ये iron ore की थी. Okay, we were on. Yeah, so इससे पहले था वो actually. We have studied it before that. Okay. Yeah. So हम लोगों ने देखा था कि wait a second. Okay. Yeah, yes, see. Extracting of minerals from ore. हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था कि ये हीट सप्लाई करता है यहाँ से एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे मॉल्टन ओर्स. ओके, तो इस वाले प्रोसेस में भी वो कोल इज एक्चुअली यूजफुल टू अस. ओके, या एंड हमने ये भी पढ़ा था कि कोल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है. एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ. दैट जैसे इंडिविजुअल थिंग्स यानी कि एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड कर देता है जो कि हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट इट मींस. या नाउ वी कम अप टू हियर. सो हमने जाना था ना कि हम कोल को यहाँ रखेंगे, वो एयर के साथ रिएक्ट होगा, बॉयल होगा. ठीक है, स्टीम को या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, टर्बाइन रोटेट करेगा, जनरेट करेगा एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. अभी मैंने जल्दी में बता दिया. अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो देख लेना. या सो नाउ वी कम अप टू टाइप्स ऑफ फ्यूल. जल्दी से फिनिश करना है टॉपिक. या फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोवाइड न्यूक्लियर एनर्जी, हीट और पावर. सो फ्यूल एक सब्सटेंस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है एक्चुअली. ओके, मटेरियल लाइक कोल, वुड, ऑयल और गैस के प्रोवाइड हीट व्हेन बर्न. जब वो बर्न होता है तब दे कैन प्रोवाइड हीट. ओके, so there are types of fuels which are called fossil fuels, nuclear fuels, and renewable fuels and waste fuels. I understand the meaning of raw material, but can you give an example? Okay, so basically Alina wants an example of raw material. Okay, yeah. So let me tell you that suppose आपको इसे समझ नहीं आएगा, but I can tell you that 2 raw materials such as ammonia and benzoil, ये केमिकल है, ये एक्चुअली केमिकल है जिन्हें हम कहते हैं अमोनिया एंड बेंजोइल. ओके, अमोनिया एंड बेंजोइल ऑब्टेन होते हैं जब एक्चुअली कोल बर्न होता है एंड गैसेस रिलीज होती है. ओके, सो अलीना अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि दे आर अमोनिया एंड बेंजोल जो कि रिलीज होता है जब दे आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैसेस व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन कोल इज एक्चुअली बर्न. ओके, जब कोल बर्न होता है तो गैसेस निकलती है. मैंने बताया था ना कंबशन गैसेस निकलती है एंड दिस कंबशन गैसेस ये उन चीजों को एक्चुअली उनको इसमें से वो चीजें ऑब्टेन हो सकती है. अब अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स पे हम लोग, पहला है फॉसिल फ्यूल्स, फिर न्यूक्लियर, फिर रिन्यूएबल एंड वेस्ट फ्यूल्स. ओके,
So fossil fuels are hydrocarbon, primary coal, fuel oil और natural gas. इनको काफी सारे नाम दिए गए हैं and formed when the remains of dead plants and animals. यानी कि सिंपल ऐसा फ्यूल जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता हो, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो यानी कि ऐसा फ्यूल जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता हो, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, अब आपको इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं. सॉलिड यानी कि जैसे कोल. कोल इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल. एंड लिक्विड के एग्जांपल हो गए ऑयल, पेट्रोलियम. एंड गैस के एग्जांपल हो गए नेचुरल गैस. ठीक है, अभी हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे. तो यानी कि फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर, जब फॉसिल से आपको पता चलता होगा यानी कि एनिमल, यानी एनिमल्स के फॉसिल, नॉट एक्चुअली फॉसिल बट उनकी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो लोग बनते हैं. ओके, रिमेन्स, जो उनके बाद के जो जितने भी फॉसिल्स होते हैं, यानी कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल के रिमेन्स से वो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. ओके, इसके थ्री टाइप्स है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So it is actually remains. Coal is a solid fossil fuel, petroleum liquid, natural gas का. ओके, या अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स पे. न्यूक्लियर फ्यूल इज द फ्यूल दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअली यूज होता है. एंड these fuels are fissile and the most common nuclear fuels are the radioactive elements. यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियर फ्यूल्स की हेल्प से बनते हैं. रेडियो एक्टिव मिनरल्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की नहीं. यानी कि जो यूरेनियम या एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूल जो कि एक्चुअली हेल्प्स. देखो, आपको न्यूक्लियर फ्यूल में ज्यादा नहीं करना, बस आपको ये रखना है जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम मिनरल है जो, वो न्यूक्लियर फ्यूल की कैटेगरी के अंदर आता है. ओके, बस इतना याद रखो कि न्यूक्लियर फ्यूल की कैटेगरी के अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स आते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम. ओके, अभी आते हैं हम लोग, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. बस आपको इतना याद रखना है, यूरेनियम माइनिंग होती है, फ्यूल प्रोड्यूस होता है. फ्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है वो अभी हम सोचेंगे. आई कैन इवन टेल यू बिकॉज मैंने बना रखा है कि हाउ इज फ्यूल एक्चुअली प्रोड्यूस. बट यू नो कि हमारा बहुत सारा, तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी इट लेटर. यूरेनियम माइन होकर फ्यूल प्रोड्यूस होता है. एंड यू नो इट, ये जो फ्यूल होता है ये काफी सारी चीजों में हेल्पफुल होता है. मैं इस स्लाइड को ज्यादा नहीं पढ़ाने वाली हूँ. ओके, नाउ वी कम अप टू रिन्यूएबल. तो यानी कि आपको इतना समझ आया. न्यूक्लियर वाले में हमने पढ़ा कि जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है एक्चुअली. ओके, आपने उसका आपको याद है कि आपको इतना याद होना चाहिए, रेडियो एक्टिव मिनरल्स इसके अंदर फॉल करते हैं, इसकी कैटेगरी में. फॉसिल फ्यूल्स जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उससे बनता है. एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स आर फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, यानी कि प्लांट से, एनिमल से, और यू कैन से विंडमिल से, ये सारे इन सब से जो फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं. रिन्यूएबल यानी कि बायोफ्यूल्स, यानी कि वेजिटेबल ऑयल सच एज फ्यूल, ethanol, methanol from chemical energy, and carbon dioxide or biomass or biodiesel, and hydrogen fuel when produced with renewable process. So यानी कि जो फ्यूल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? डू यू नो गाइस व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जो कि एक्चुअली यू नो नेचुरल थिंग्स से बनते हैं. ओके, लाइक हाइड्रो एनर्जी, ये सारी जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी होती है ना, ये सारी रिन्यूएबल फ्यूल में के अंदर फॉल करती है. ओके, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो बनती है वो होती है रिन्यूएबल फ्यूल. Have you got it? Please tell yes or no. अगर आपको समझ आया प्लीज टेल
If not, please ask me again. वैसे आई थिंक इट इज क्लियर कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं. ओके, नाउ वी कम अप टू बायोमास. बायोमास आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे बायोमास लिखा है, दिस इज बायोमास. ओके, व्हाट इज बायोमास? बायोमास इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिक मटेरियल. बायोमास पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग मटेरियल. यानी कि जो चीजें जो लिविंग थिंग से बनती है वो सारी बायोमास में आती है. एंड बायोमास का जो पाउडर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह बायोमास की एनर्जी को रन करने में करती है. बायोमास की एनर्जी जो होती है ना वो रन होती है जब उनको बायोमास का पाउडर मिलता है. एंड जो बायोमास का पाउडर है वो ऑब्टेन होता है लिविंग थिंग्स से. ओके, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स से वो ऑब्टेन होता है. चलो, हमने रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से फॉर्म होते हैं. एंड न्यूक्लियर, इसको तो आपको याद रखना है, रेडियोएक्टिव. फॉसिल फ्यूल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी आते हैं हम लोग वेस्ट फ्यूल्स. चौथा टाइप ऑफ फ्यूल जो होता है वेस्ट, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनते हैं. आर यूजुअली बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑन साइट प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी कि जो साइट पे जो प्रोडक्शन होते हैं उनमें बहुत सारा वेस्ट आता है, तो वेस्ट को वो लोग फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, it does not have इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि उसके कोई पैसे नहीं होते हैं, बट वो जनरली इकोनॉमिकली यूज होती भी है. यानी कि वो कमर्शियली लोग ज्यादा उसे यूज नहीं करते हैं उसको. वेस्ट टू फ्यूल्स. ओके, वेस्ट से वेस्ट फ्यूल बना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल फ्यूल बना, न्यूक्लियर में यूरेनियम रेडियोएक्टिव मिनरल्स आ गए, एंड फॉसिल फ्यूल डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये जो वेस्ट फ्यूल्स है, ये वेस्ट फ्यूल्स do not have economic value and they are usually byproducts of on-site प्रोडक्शन. यानी कि जो साइट पे जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि बहुत सारी साइट पे जो बहुत सारे वो प्रोड्यूसिंग बहुत सारे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिनरल प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. एंड दीज बाय प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली प्रोडक्ट मेड इन द मैन्युफैक्चर. ओके, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्ट्स मेड होते हैं ना, उसमें से रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वेस्ट फ्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं. Let us just learn about gasification. Gasification is a process that converts biomass or fossil fuel based carbonaceous material into carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide. यानी कि बेसिकली गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग थिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूल में. वेरी इजी. ओके अलीना, गॉट इट? या, सो या, this is achieved by reacting the material at high temperature 600-700 above degree Fahrenheit Celsius without combustion, without controlled amount of oxygen or steam. यानी कि ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें स्टीम, कंबशन, ये सारी चीजें होती है. तो ये बेसिकली आप ऐसे करो कि गैसिफिकेशन में हम लोग थिंग्स को फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. बायोमास यानी कि थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर को हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे देखो, जो ट्रैश है वो सारा ट्रैश जा रहा है, हीट हो रहा है. यहाँ पे गैसिफायर यानी कि जो गैसिफिकेशन को फॉलो करता है. आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं रखना, बस आप इसको देख लो कि हाँ कैसे ट्रैश जा रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं एक्चुअली, एंड वो हमें लास्ट में मेटल, ग्लास, हमें फ्यूल मिल रहा है. ओके, now let's come up to petroleum. Petroleum is a liquid fossil fuel. ये fossil fuel यानी कि dead plants and animals से बनता है, and it is derived from organic material trapped into the layers of sedimentary rocks. Important oil fields of the world are located along the margins of young full mountain and coastal areas. इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं. And yeah, most important thing, the petroleum is also called black gold. Just because ये बहुत इसकी इकोनॉमिकली वैल्यू बहुत हाई है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इतना महंगा हो रहा है पेट्रोलियम. एंड नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम के साथ नेचुरली फॉर्म होती है,
आपको इनको डिटेल में नहीं जाना कि कैसे फॉर्म होती है, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। आपको बस याद रखना है कि ये फॉसिल गैस होती है, फॉसिल गैस फ्यूल्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम के साथ नेचुरली अकर करता है, और कभी कभार वो अकेले भी अकर कर जाते हैं। ओके, natural gas is widely used in industrial and domestic fuel. अभी industrial and domestic fuel कौन सा है, ये तो हमने करे ही नहीं, what are they, है ना? So industrial, see, जो जितने भी हमारे ये चारों फ्यूल्स थे, लेट मी टेल यू कौन कौन से थे। ये फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, ये सारे फ्यूल्स है ना, ये दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं एंड एक होते हैं जो इंडस्ट्रियल होते हैं, यानी कि एक जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है एंड एक जो डोमेस्टिक यानी कि हमारे घर में यूज होता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, इतनी सारी चीजें आती है जो हमारे घर में यूज होती है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स डोमेस्टिक के अंदर फॉल करता है एंड वेस्ट फ्यूल्स भी डोमेस्टिक के अंदर फॉल करता है। न्यूक्लियर फ्यूल ये हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि ये इंडस्ट्रीज यूज करती है, ये बॉम्ब्स वगैरह बनाने में हेल्प करती है। एंड रिन्यूएबल, यू नो रिन्यूएबल क्या थी, रिन्यूएबल वाज की बायोमास से रिलेटेड, ये भी हम लोग कभी कभार यूज कर लेते हैं, कभी कभार नहीं, जैसे विंडमिल्स वगैरह। वैसे मेनली ये भी इंडस्ट्रीज में ही यूज होती है। ओके, या so basically what is this domestic fuels are the fuel that we use at home, and industrial fuels are made up of industrial gases, which are made up of gaseous materials that are manufactured for use in industry. Okay, so very easy actually. Yeah, so this was actually the end of our today's session, and hope you guys enjoyed a lot. If you have not understood it, you can comment me anytime, you can chat me. Okay, yeah, you can comment me, you can actually ask me in the comment box, I will tell you definitely. Okay, hope you all enjoyed this session, and keep loving, keep supporting. Okay, okay, so bye bye to all, thanks for watching. Thanks for watching. Okay, bye.